Hello and welcome back to our YouTube channel Nerdy Brains. So today we will be solving some genetic numericals related to our formulas which we discussed in our previous video. So if you haven't seen our previous video, you can find the link in the description box down below. So okay, let's get started. You can see our first question here, that is, find the number of gametes produced by plant having genotype capital A, capital B, small b, capital C, capital D, small d, capital E. So now we know that the number of gamete formula is 2 raised to the power n. Now 2 raised to the power n, where n stands for number of heterozygous. So यहाँ पर कितने heterozygous present हैं? n is equal to 1, 2, 3 because 3 heterozygous are present. So n will be 3. Now putting the formula in, putting n in, will give us 2 raised to the power 3, which will be 2 into 2 into 2, which will be 8. So our answer will be 8. Okay. Now it was just simply using the formula you got the answer. Now let's move on to the next question. It says types of gametes can be formed by the F1 progeny resulting from the following cross: capital A, capital B, capital C into small a, small b, small c. So हमें करना क्या है, क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और इसमें हमसे F1 प्रोजेनी के गैमीट्स पूछे जा रहे हैं. क्या पूछे जा रहे हैं? F1 प्रोजेनी के गैमीट्स. तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी हैव टू क्रॉस दीज टू पेरेंट्स बिफोर taking out the gametes. So what will be the cross here? Capital A, capital B, capital C into small a, small b, small c will give us what? Capital A, capital B, small b, capital C, small c. Right? Now this is the genotype from which we have to find the gamete. Now if you can see here, n is equal to 3 because 3 heterozygous are present. So the formula will come out to be 2 raised to the power n, 2 raised to the power 3, 2 into 2 into 2 is equal to 8. Okay, so here also our answer is coming out to be 8, but you have to understand the question before that and read the question carefully ताकि आप कोई गलती ना कर दें. यहाँ पे हमसे F1 प्रोजेनी के गैमीट्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने पहले क्रॉस करा और उसके बाद उस F1 प्रोजेनी का हमने गैमीट्स निकाले. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन विच सेज फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशन. तो हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ गैमीट्स पेरेंट 1 इनटू नंबर ऑफ गैमीट्स ऑफ पेरेंट 2. ओके, सो यहाँ पर number of gametes of parent 1 means we have to find out the number of gametes of parent 1. This is parent 1 here, this is parent 2 here. Okay, so if this is parent 1, then what will be the number of gametes? You can see only and only one heterozygous is present here. So n will be 1 for parent 1 and gametes will be
2 raised to the power 1, which will give us 2. Fine. Now if we take parent second, that is this one. Now how many heterozygous are present here? 1, 2, 3 and 4. We can find 4 heterozygous here, right? So n will be 4 for P2. For parent 2, n will be 4. So formula will give us 2 raised to the power 4, which will give us 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So we got 16. Now what was the formula? Into. So what we'll do? 2 into 16 will give us 32. Okay, so the answer is 32. You just have to remember the question. The formula. You just have to remember the formula. Now let's move on to the fourth question. Number of phenotypes and number of genotypes is in cross between itna and itna. Matlab we have to find out the number of phenotype and the number of genotype in the cross of this and this. तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है फिनोटाइप का वो जीनोटाइप के इक्वल होता है. तो अगर हम लिखें यहाँ पर नंबर ऑफ फिनोटाइप के फॉर्मूले को, द फॉर्मूला ऑफ फिनोटाइप इज 2 raised to the power n एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला इज 3 raised to the power n. तो 2 raised to the power n and 3 raised to the power n. अब एक चीज और मैंने बताई थी कि जब ऐसा क्रॉस दिया हो, सेल्फ क्रॉस, तो वी ओनली टेक द फर्स्ट पेरेंट. फाइन, बिकॉज सेम ही ट्रेट है. तो हमने ये वाला ट्रेट ले लिया और इसमें हम देख लेंगे कि हमें कितने हमें हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं. तो यहाँ पे हमें पहला मिल रहा है, यहाँ पे हमें दूसरा मिल रहा है और यहाँ पे हमें तीसरा मिल रहा है. ओके, यहाँ पे हमें तीसरा मिल रहा है. तो हम क्या लिखेंगे कि n जो यहाँ पर बन रहा है वो है 3 एंड फॉर्मूला में अगर पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा 8. तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स 8 होंगे. अब यहाँ पर हमें n कितना मिल रहा था? 3. फॉर्मूला में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा 27. सो हमारे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बन गए 27 एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बन गए 8. सो फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे ताकि आप सिंपली उनको पुट करके, फॉर्मूला को पुट करके आप अपनी आंसर्स निकाल सकें. अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इफ इंडिविजुअल्स ऑफ जीनोटाइप AA, BB, CC, DD are intercrossed, how many different genotypes can occur in their progeny? तो हमें क्या निकालना है? जीनोटाइप्स निकालने हैं. एंड जीनोटाइप हमें इसमें दिए हैं, लाइक दिस इज अ जीनोटाइप, बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन दे आर क्रॉस्ड, तब कितने जीनोटाइप्स बन के आएंगे. ठीक है, व्हेन दिस इज क्रॉस्ड विद दिस सेल्फ क्रॉस इज देयर, देन हाउ मेनी जीनोटाइप्स विल बी फॉर्म्ड. सो अगर हम इसको लिखें AA, BB, CC एंड DD, तो कितने n बन रहे हैं? 4n बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 हेट्रोजाइगस दिए, 4 हेट्रोजाइगस दिए, n 4 आ गया. हमें जीनोटाइप निकालना है. सिंपली फॉर्मूला में पुट करा 3 raised to power 4
and we'll get the answer. So we will get 3 into 3 into 3 into 3, which will give us 81. Okay, so we just used the formula. Okay, so now let's move on to the sixth question, which says that if there are 4 alleles for a gene and then number of genotypes and phenotypes will be what? So हमें निकालना क्या है? Number of genotype and phenotype. और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा मल्टीपल अलील्स का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 4 अलील्स दिए गए हैं. तो हमें पता है नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स कितने होते हैं, कितने दिए हैं, सॉरी हमें दिए गए हैं 4. जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या होता है मल्टीपल अलील्स के लिए? वो होता है n/2 n+1. सो हमारा n कितना हो गया? 4 हो गया, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ अलील्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स पे. तो हमें n दिया गया है 4, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में 4 पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हमें मिल गया 4/2, 4+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. सो वी गॉट जीनोटाइप हमारे कितने आ गए? 10 आ गए. फाइन. अब अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था कि हमें फिनोटाइप निकालना है. तो अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर मल्टीपल अलील will be n+1. Now n is 4, 4 plus 1 will give us 5. तो हमें 5 phenotypes मिल जाएंगे. Fine. So this was also formula based. अब आते हैं एक अजीब सा नहीं कहूँगी, एक ट्रिकी क्वेश्चन पे. तो ये क्वेश्चन है कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है. किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ परफेक्ट हेट्रोजाइगस. परफेक्ट हेट्रोजाइगस का क्या मतलब हुआ? कि इसका परफेक्ट हेट्रोजाइगस, इनका परफेक्ट, किनका परफेक्ट? ये जो हमें क्रॉसेस दिए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. और इनका जो परफेक्ट एक हेट्रोजाइगस आएगा दैट इज कैपिटल ए कैप स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. ये इसका इन दोनों के क्रॉस से जो परफेक्ट हेट्रोजाइगस आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि ये कितनी बार आएगा. फाइन. ये कितनी बार आएगा तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. हमें क्या पता है कि एक हमें पता है मेंडल ने हमें क्या दिया था? थर्ड लॉ बताया था ना. थर्ड लॉ क्या था मेंडल का? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब उसने बोला क्या था इस लॉ में? उसने ये बोला था कि हर जीन अपना अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा. ठीक है. लेकिन अगर हम इन जीन को कंबाइन करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन में कितना वैल्यू देगा, कितनी फ्रीक्वेंसी देगा या कितनी प्रोबेबिलिटी देगा. साथ में अगर हम इन्हें करेंगे तो इनकी साथ की फ्रीक्वेंसी या साथ की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं. तो हम इसी लॉ को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे इस ट्रिकी क्वेश्चन को. अब यहाँ पे ट्रिक हम कौन सी यूज़ करेंगे? हम पहले लेंगे सिंगल जीन्स को और उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे. तो हमने यहाँ ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए. अब इसको हम इनका हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं. अब पनेट स्क्वायर में हमें जीनोटाइप्स क्या क्या मिलेंगे? कैपिटल ए,
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। फाइन। हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है ये वाला क्रॉस कितनी, ये वाला जीनोटाइप कितनी बार आएगा। सबसे पहला जीन जो यहाँ दिया है वो क्या दिया है? ये है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर 2/4 के रेशियो में आ रहा है, मतलब 2/4। सो हाफ टाइम आ रहा है यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए। फाइन। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्रेट लेंगे, दैट इज दिस वन, BB एंड BB। फाइन। सो B B B B, हम इसको करें अगर तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमें निकालना क्या है? कैपिटल B का पता करना है। तो हमें पता है यहाँ वाले में 2 बार आ रहा है, तो मतलब 2 बार 4, 2/4, 1/2 टाइम्स। फाइन। अब हमें थर्ड का निकालना है, तो हम सेम थर्ड का भी इस तरीके से निकाल लेंगे। कैसे? C C C स्मॉल c, कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c। पूछा क्या है हमसे? कैपिटल C स्मॉल c के बारे में पूछा है। यहाँ पे सेम चीज़ 2 बार आ रहा है, तो 2/4 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और 1/2 हम मान लेते हैं, क्योंकि इसको हम जब काटे पीटेंगे तो हमें 1/2 मिल जाएगा। ओके। सो अब हमें क्या क्या मिल गया कि कैपिटल A स्मॉल a हमें हाफ बार मिलेगा, कैपिटल B स्मॉल b हमें हाफ टाइम मिलेगा, और कैपिटल C स्मॉल b हमें 50 टाइम्स मिलेगा, 50% टाइम्स। तो मैंने क्या बोला था कि हम इनको कंबाइन करके इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अब कंबाइन का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच विल गिव अस 1/8। सो 1/8 टाइम्स कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c हमारे क्रॉस करने के बाद आएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से हम रेस्ट ऑफ द जीन्स के बारे में भी, रेस्ट ऑफ द जीनोटाइप्स भी निकाल सकते हैं। अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन पे है। सी, इन द क्रॉस AA BB CC and small a capital B small b capital C small c, what is the probability of an offspring that is AA BB CC? तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सिंगल ट्रेट्स लेके उनके पनेट स्क्वायर बना लेने हैं फौरन से। जल्दी का काम है ये, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर बनाना तो बिल्कुल आता होगा सबको। हमें पूछा क्या गया है? स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 टाइम्स। सो 2/4 विल गिव अस 1/2। सिमिलरली कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b, तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b, हमें मिल गया कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कैपिटल B स्मॉल b, तो ये है हमारा कैपिटल B स्मॉल b, ये है हमारा कैपिटल B स्मॉल b। तो हमें मिल गया 2/4 विच विल गिव अस हाफ। फाइन। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा है स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c। फाइन। सो कैपिटल C स्मॉल c, तो हमें मिल गया क्या? कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c। हमें पूछा क्या था? स्मॉल c कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसका क्या रेशियो होगा? 2/4 रेशियो होगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो हमें निकालना क्या था? AA कैपिटल B स्मॉल b CC, तो रेशियो क्या आया इसका? हाफ इंटू हाफ, ये आया ना, हाफ
इसका CC का, तो हमें क्या मिल गया 1/8। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप फौरन से ऐसे स्टेप्स के साथ, ट्रिक के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 9th one. Now this question is on probability again. If the frequency of a dominant phenotype in a stable population is 75%, the frequency of a recessive allele in that population would be. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? 75% बोल रहे हैं कि डोमिनेंट फिनोटाइप है। फाइन। अब भाई डोमिनेंट है तो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 75 बोल दिया। अब 75 अगर डोमिनेंट हैं तो 25 क्या होंगे? रेसेसिव होंगे, रेसेसिव फिनोटाइप होंगे। फाइन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 75:25 का रेशियो जो है वो 3:1 का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि 25 में 75 3 टाइम्स आता है, तो 3:1 का रेशियो हो गया। तो हमें पता चल गया कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना। फाइन। अब यहाँ पे जो 3:1 का रेशियो आया हमारा, ये जो 3 आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। फाइन। सिमिलरली जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ए, है ना। अब यहाँ पे हम देखें, हमसे पूछा गया है कि हमें रेसेसिव अलील का पता लगाना है कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो अब रेसेसिव अलील का क्या मतलब है? अगर हम इस हिसाब से देखें तो डोमिनेंट अलील ए हो गया हमारा, और स्मॉल ए हमारा क्या हो गया? रेसेसिव अलील। तो हमें स्मॉल ए का पता लगाना है कि स्मॉल ए कितनी बार आएगा, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हमें क्या निकालना है? कैपिटल ए स्मॉल ए का रेशियो निकालना है कि क्या रेशियो है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये 4 जीनोटाइप आ रहे हैं। अब इन 4 जीनोटाइप में कैपिटल ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। उसी तरह अगर हम देखें तो स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है? स्मॉल ए आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4:4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्मॉल ए का रेशियो है वो 50% होगा। 50% मतलब 0.5 उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये भी 4 बार आ रहा है, ये भी 4 बार आ रहा है, तो क्या हुआ? हाफ फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो इसी वजह से क्या रेशियो रहेगा, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी रेसेसिव अलील ए की? 0.5. Fine. So let's move on to our last question, that is question number 10. अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find F2 dihybrid phenotypic ratio where gene at one loci shows incomplete dominance and gene at other loci shows normal dominant recessive relationship. Fine. एक पॉइंट याद रखना हमेशा के लिए कि जब भी कोई पूछे डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए 2 फिनोटिपिक रेशियोज। किसके? क्रॉस जो तुम्हें कराया जाए उनका। ठीक है, यहाँ पे पहला किसका पूछा जा रहा है? यहाँ पे पहला बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो हमें चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट का फिनोटिपिक रेशियो। दूसरा चाहिए हमें नॉर्मल डोमिनेंट रेसेसिव रेशियो, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का।
ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो। तो अब फिनोटिपिक रेशियो अगर हमें इसका चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो क्या होगा इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? वन इज टू टू इज टू वन। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? 3:1। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दो रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और हमें क्या मिल जाएगा, डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो निकालना है, तो कोई भी, जैसे आपको जहाँ पे पूछा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो उनका आपको सिर्फ और सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो मल्टीप्लाई कराना है आपस में और आपको डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको फिनोटिपिक रेशियो मल्टीप्लाई कराना है और आपको डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पर 1:2:1 बन रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और यहाँ पे बन रहा था 3:1 नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो इसको हम कहेंगे 1:3 will be 3, 1:1 will be 1, 2:3 will be 6, 2:1 will be 2, 1:3 will be 3 and 1:1 will be 1. So this will be our answer. So ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। ये हमेशा याद रखना कि डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो में जो रेशियोज हैं उनको मल्टीप्लाई कराया जाएगा फिनोटिपिक रेशियोज को, तो हमें हमारा जो आउटकम है वो मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियोज को मल्टीप्लाई कराना है जो भी हमसे पूछा जाए उनका। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, comment and share it with your friends. And also if you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon so that you can get our all our videos on time. And thank you guys for joining in. See you.